Good morning to all of you, my dears. I hope that you all will be fine. And okay, let us start today's class. In this class, we are going to write what is present continuous tense. My dears, present continuous tense is the second type of present tense, and present continuous tense is a tense in which we say about those kind of actions which are in continuous form in the present time. My dears, let us try to understand what does the present continuous tense mean and which auxiliary verbs and which main verb is used in the present continuous tense and how English is spoken in this tense. Let's try to understand. My dears, you know that present means hal and continuous means jari and tense means a sentence which indicates the time of working. You know, in tenses we deal with verbs, different forms of verbs are, and those forms of verbs are dealt in tenses. And you do know better it that there are only 12 types of tenses. Okay, let's try to understand first what is present continuous tense. My dears, as you know that the present continuous tense indicates those kind of actions which we do in the present time in a continuous form. इसका मतलब यह है कि जो भी कोई काम आप कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो, उस काम का जिक्र हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे सामने काम कर रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि ही इज राइटिंग ए बुक, वो लिखने के काम कर रहा है. ही इज राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रहा है, ये कंटिन्यूसली इस काम को कर रहा है. जो भी कोई काम आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, उस काम का जिक्र प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया जाता है. ओके, ये तो हमें पता है, ये तो ऊपर से हमें समझ आता है कि कंटिन्यूस किससे कहते हैं कि इसमें वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म लगाई जाती है और एक वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म कैसे बनाई जाती है. इसका सीधा सा एक आंसर है, बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जब आप इंग ऐड करेंगे तो वो कंटिन्यूस फॉर्म बन जाती है उसकी. ठीक है, यू नो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, and continuous form is considered to the fourth form, and the fifth form is the main verb, first form of verb when it takes s or a, that is called the fifth form of verb. Okay, we have to use in this tense the continuous form of a verb. Continuous form of a verb is made by adding ing to the first form of verb. Okay, and let us see which kind of auxiliary verbs are used in the present continuous tense and how these present continuous tenses are made. How a sentence is made which is of present continuous tense. Let's try to understand. My dears, first I will make you aware about the meanings of auxiliary verbs which are used in the present continuous tense. That is, my dears, is what is it? Is a auxiliary verb. It means hai, and is gives two meaning kya, and another auxiliary verb is that is or. It means hai, and it too has a meaning of kya. When auxiliary verb is used at the beginning of the sentence, that means that auxiliary verb is used to ask a question. Whenever you use the auxiliary verb at the beginning of the sentence, a question is made. Okay. And another auxiliary verb which is am, it means who, and it too has a meaning of kya. When these auxiliary verbs are used at the beginning of the sentence, then they give the meaning of kya. And when they are used to make the sentence complete and are used to make a sentence, are used to make a complete meaning of a sentence, then they give the meaning of hai. These meanings always make the sentence close. Okay, let us try to understand. And the form of verb. As you know, the verb has three forms, it has five forms. A verb has five forms. Okay, that is, first form of verb, the verb which we are going to use in this tense, that is, for example, eat. First form of verb, eat. Eat, it means khana. Okay, it means khana. When you add ing to this first form of verb, then it becomes eating. Okay, this is called the continuous form, kha raha. Okay, तो हमें क्या समझ आया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इंग ऐड करेंगे तो वो कंटिन्यूस फॉर्म बन जाती है. ये कंटिन्यूस फॉर्म इस कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल की जाती है. अब देखते हैं इन ऑक्सिलरी वर्ब के जरिए हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को बनाएं. ओके, पहले हम सिंगुलर्स के साथ बात करेंगे. हम कहेंगे ही. ओके,
इज, अब आपको क्या कहना है, कंटिन्यूअस टेंस में आपको तो बता देता हूं, इसमें आपको रहा इस्तेमाल करना है। वो खा रहा है, वो खा रही है, वो खा रहे हैं। ओके, देखिए, ही इज ईटिंग फूड। क्या मतलब है इसका? वो खाना खा रहा, वो खाना खा रहा है। देखिए, इट मीन्स वो, एंड इट हैज द मीनिंग दिस, एंड खा रहा खाना, यानी कि वो खाना खा रहा है। अब आप यहां पर नजर रखिए, ईट अगर होता तो खाना होगा, खाने से खाता। ईटिंग जब है खा रहा, ये रहा क्यों आता है? क्योंकि यहां पर ही है, सिंगल मेल है। अगर आप सिंगल फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर खाली ये चेंज होगा, उर्दू में खा रही आएगा यहां पर। ओके, अगर एक से ज्यादा है तो आएगा खा रहे। ओके, इतना समझ आ गया आपको? वेरी गुड। चलिए, देखिए आपको बताया जाता है आपको कि इसकी अपनी फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म, या लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ये कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब की है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मूला। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस फॉर्म मींस मेन वर्ब। ओके, देखिए यहां इसका मतलब निकल रहा है, वो, गौर से देखिए, खाना खा रहा है। ओके, ये मैं ए लिखूंगा, यहां पर एन लिखेंगे और यहां पर INT लिखेंगे। ओके, देखिए पहले मैं आपको ये समझाता। एफर्मेटिव किसे कहते हैं? एफर्मेटिव इस सेंटेंस को कहते हैं जिससे आप सवाल पूछते हैं, सॉरी, जिसमें आप इकरार करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस व्हिच सेज यस। ओके, जिसमें आप इकरार करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप यस वहां पर लिखेंगे, यस, नो, यस के बगैर भी इकरार होता है, एफर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है, ये एफर्मेशन है, आप इकरार कर रहे हैं। ठीक है, बाय एनी वे यू हैव टू शो यस इन ए सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें आप इकरार करते हैं किसी काम को, उसको एफर्मेटिव कहते हैं। और वो सेंटेंस जिसमें आप इकरार नहीं करते, आप इनकार करते हैं, उसे इनकारिया सेंटेंस कहते हैं। A sentence in which you say no, none, never, but anyway you refuse. Okay, that is called negative sentence. और इंटरोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिससे आप सवाल पूछते हैं। ओके, a sentence which asks a question. चलिए सीख लेते हैं। इसे कहते हैं इकरार, इसे कहते हैं इनकार, इसे कहते हैं सवाल है। क्योंकि उमूमन इन्हीं तीन सेंटेंसों में हमारी बात होती है, हमारी एक्सप्रेशन होती है। जब भी हम कहते हैं उमूमन हम इन्हीं तीन बातों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी बातों का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उमूमन ज्यादातर यही बातें निकलती। या तो हमारी बात सवाल होगा, या तो हमारी बात इकरार होगा, या तो हमारी बात इनकार होगा। ओके, देखिए, ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। अब इसका आपको इनकार करना है, आप कहेंगे सीधे, आपको नेगेटिव बनाना है, आप कहेंगे ही इज ईट फूड। ओके, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा है। देखिए गौर से देखिए, वो खाना नहीं खा रहा है। ओके, अब इसी में से आपको इंटरोगेटिव बनाना है। कोई आउटसाइड से आपको वर्ड नहीं, बाहर से कोई वर्ड आपको इसको नहीं डालना है, इन्हीं वर्ड्स को उधर का इधर करके आपको इंटरोगेटिव बनाना है। अब याद रखिए, जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब आप पहले एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में लिखेंगे तो उससे सवाल बनता है। ठीक है, इज ही ईटिंग फूड? ओके, इज ही ईटिंग फूड। अगर आपने कहा इज ही ईटिंग फूड, नॉट को नहीं जोड़ दिया, तो ये अफर्मेटिव इंटरोगेटिव है। इकरारिया में सवाल, इज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है? अगर आपने कहा इज ही नॉट ईटिंग फूड, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव में सवाल, क्या वो खाना नहीं खा रहा? फॉर एग्जाम्पल, इज ही योर ब्रदर और इज ही नॉट योर ब्रदर, क्या वो आपका भाई नहीं है? क्या वो आपका भाई है? इज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है? इज ही नॉट ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहा है? इज ही नॉट गोइंग देयर, क्या वो वहां नहीं जा रहा है? इज ही नॉट डूइंग द होमवर्क, क्या वो होमवर्क नहीं कर रहा है? इज ही डूइंग होमवर्क, क्या वो होमवर्क कर रहा है? देखिए, ओके, ये है सिंगुलर्स के साथ। सिंगुलर्स के साथ फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है? प्रोनाउन सिंगुलर, नाम आप लिखिए, सिंगल किसी का नाम लिखिए, अब फिर काम को आपको खुद ही देखना है क्या ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप पेन लिखेंगे यहां पर, तो क्या पेन ईटिंग करेगा? नहीं करेगा।
ठीक है, इसका मतलब है बिलाल, इकबाल, मसीहा। जब सिंगल फेल का मेल का आप जिक्र करेंगे उनके बदले में प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। अब जब अगर फीमेल यहां पर होगी तब भी आप यही लिखेंगे, शी इज ईटिंग फूड। अब यहां पर चेंज आएगी, वो खाना खा रही। ओके, यहां पर मैंने आपको बताया था जो इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको जो सेंस लेना है, जो इस पर इंग्लिश बोलेंगे आप इसमें रहा, रही और रहे आते हैं। देखिए, ओके, यह बात आपको समझ में आई। ही इज नॉट ईटिंग फूड। ओके, इज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा है। इसी तरीके से आपको इंग्लिश ये देखिए, ये देखिए, ये एक है इसलिए आएगा ये। अगर फीमेल होगी, शी इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है। शी इज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना खा रही है, तो फिर यहां पर रही आएगी। ओके, ये सिंगुलर्स के साथ। ओके, इतना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सिंगुलर्स के साथ आपको इज इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है देखिए। लेकिन यहां पर जब आप बिगनिंग में इसी इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर इसका मतलब निकलता है क्या, याद रखिए। ओके, ये देखिए। ओके, अब देखिए, अब पिलुलर के साथ आपको इस्तेमाल बताएंगे, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अब कहेंगे हम दे आर ईटिंग फूड। दे आर ईटिंग फूड। अब यहां पर इज नहीं आएगा क्योंकि पिलुलर है और पिलुलर आएगा यहां पर। ये देखिए, जब आप उर्दू में लिखते हैं एक से ज्यादा बात करते हैं तो आप ये वाला हैंड डाल देते हैं। अगर आप एक के बारे में बात करते हैं तो ये वाला हैंड डाल देते हैं। ठीक है, सही कह रहा हूं। तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, इसका है का पिलुलर ये है। ओके, दे आर ईटिंग फूड, वो खाना खा। अब यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर ये नहीं रहेगा, अब एक से ज्यादा है, यहां पर आएगा खाना खा रहे और ये भी भर लेगा। ये देखिए, ये हो गई ये वाला मीनिंग। अब ये एफर्मेटिव है। अब इसका मतलब क्या है, दे का मतलब, दे का मतलब है देखिए, बॉयज है, गर्ल्स है ना। प्लूरल, चाहे आप नाम लिखे या आप प्रोनाउन लिखे। दे का मतलब है वी का वी मतलब यू है ना। ये प्लूरल से दे आर ईटिंग फूड, एफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाइए आप, वो खाना नहीं खा रहे हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, दे आर नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहे, वो खाना नहीं खा। अब क्या आएगा यहां पर, वो खाना नहीं खा रहे हैं। ओके, अब इसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है, सवाल बनाना है। आप कहेंगे आर दे ईटिंग फूड, आर दे ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहे हैं। ये देखिए, क्या वो खाना खा रहे हैं। देखा होगा आपने, इस तरीके से मीनिंग चेंज होता है। इस तरीके से आपको इंग्लिश बोलनी है। अब आप सिंगुलर के साथ आपने ईट इसका इस्तेमाल सीखा, प्लूरल के साथ आपने ईट का इस्तेमाल सीखा। अब खुद आप वर्ब्स उठाइए घर में और इनको इस्तेमाल कीजिए, सिंगुलर्स के साथ भी प्लूरल्स के साथ भी। मीनिंग मैंने आपको दिखा दिया, इसमें सेंस कैसे निकलता है। ठीक है, ये है प्लूरल के साथ। अब देखिए आप, जब आप आई के साथ अपने साथ आप बात करेंगे, अब आपने कहा उस एक के साथ, उस लड़की के साथ, उनके साथ, चाहे लड़कियां लड़कियां हो, आपके साथ, हमारे साथ। अब आपको कहना है अपने साथ। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको कहना, अब ये नहीं कहना वो खा रहा है, वो खा रहे हैं, वो खा रही है। अब आपको कहना है कि मैं खा रहा हूं। देखिए, आप कहेंगे सीधे। अब आप ये नहीं कहेंगे आई इज ईटिंग फूड, आई आर ईटिंग फूड, दैट इज रॉन्ग। अब आपको कहेंगे आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। देखिए, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूं। ओके, देखिए, अब आप कहेंगे एफर्मेटिव, इसका इकरार आपने किया। अब आप कहेंगे मैं खाना नहीं खा रहा हूं। आप कहेंगे आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग
फूड। ओके, यहां पर देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। ओके, अब आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, सवाल बनाना है। आप कैसे सवाल बनाएंगे? अभी तक तो आपने ए से और आर से सवाल बनाया, अब आपको ऑक्सिलरी वर्ब एम, एम का मतलब है हूं। ये देखिए, अब कहेंगे आप एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? ओके, एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? क्या मैं खाना क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं? ये देखिए, आई बात समझ में? यहां पर इसका मतलब क्या निकलता है भाई? आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूं? एम आई गोइंग देयर, क्या मैं वहां जा रहा हूं? एम आई नॉट गोइंग देयर, क्या मैं वहां नहीं जा रहा हूं? ओके, इस तरीके से मीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निकलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, आप कुछ वर्ब्स को उठा लीजिए, उनको सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल कीजिए, प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल कीजिए और सहारा लीजिए अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, ये जो तात्पर्य रहे हैं, यही आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे, ये आपको समझने में मदद करेंगे। ओके, कैसे इसका सेंस पकड़ लिया जाता है। जब आप किताब में देखेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे, इस तरह की आई एम ईटिंग फूड, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एंड कंटीन्यूअस फॉर्म, आप मीनिंग इस तरीके से इसका निकाल सकते हैं, है ना? आपको समझ आ जाएगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है और इसमें मीनिंग कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड, it is said at the time of speaking. When a boy is in front of me writing a book, so I am saying he is writing a book. A boy is writing a book. It is used at the time of speaking because it denotes the continuous action. Continuous actions are only shown in the present time when someone is doing an action in front of you in continuous form. Okay? अब जो हमने देखा इसमें, अब वो हमें लिखना है। देखिए क्या हमने देखा, अब जो हमने सीखना, इसका रूल हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है? देखिए, इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, what is used? Which form of main verb is used? First form of verb plus ing, ये is used, ये पता है, both with singulars and plurals, singulars and plurals. Okay, यानी कि सिंगुलर्स एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन भी लिखेंगे आप, फिर चाहे आप प्रोनाउन इस्तेमाल करें या नाउन इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक हमने देखा, देखिए इज खुद अपना इस्तेमाल, इज सिंगुलर है, सो इज यूज्ड विद singular nouns or pronouns only, है ना, इन्हीं के साथ। अब और एक हमने सीखा ARE, आर, ये ऑक्सिलरी, और एक है जो इसका प्लूरल है, आर इज यूज्ड। हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसका मीनिंग नहीं दिखा। आर इज यूज्ड विद व्हाट? प्लूरल nouns or pronouns. Okay, only। उसके बाद हमने और एक देखा am, auxiliary verb जो है ना, am is used only with pronoun I। okay, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में।
अब ये भी आपको समझ आ गया। जब आप एक के साथ बात करेंगे तो इज आपको लगाना है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इज को पहले लिखना है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। आर को प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और एम को एक आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये तो आपने वर्ब सीखा। देखिए आप नाउन आप खुद बताएंगे, एडजेक्टिव आप खुद बताएंगे। मैं कहूंगा आपको कि वो एक लड़का है, आप कहेंगे ही इज ए बॉय। मैं कहूंगा कि वो लड़के हैं, आप कहेंगे दे आर बॉयज। मैं कहूंगा वो एक लड़की है, आप कहेंगे शी इज अ गर्ल। ओके। मैं कहूंगा आप एक स्टूडेंट हो, आप कहेंगे यू आर अ स्टूडेंट, है ना। क्योंकि अब आपको आ गया समझ इज को सिंगुलर के साथ और आर को प्लूरल के साथ इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस के लिए आप लिख लीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप, और फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये लेसन और कितना आपको समझ आ गया। आप रेड को इस्तेमाल कीजिए, इसको ऐड कीजिए। आप ईट को इस्तेमाल कीजिए जो मैंने आपको दिखाया। आप ड्रिंक को इस्तेमाल कीजिए, ड्रिंकिंग आप लिखिए सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ भी। को आप इस्तेमाल कीजिए, गोइंग आप लिखिए। कैम आप इस्तेमाल कम सॉरी कम आप इस्तेमाल कीजिए, है ना। थिंक आप इस्तेमाल कीजिए, स्लीप आप इस्तेमाल कीजिए। जितने भी वर्ब्स आप चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप प्रैक्टिस के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। आज के इस लेसन में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन टेंसेस को पढ़े और अपनी जुबान को बोलना स्टार्ट करे और अपने एग्जाम में भी वो 100 में से 100 मार्क्स हासिल करे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह आपको सही सलामत रखे। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट।